Good morning, students. This is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. In the previous lectures, we have discussed about the digital to analog converter and their types. We have discussed binary weighted type D2A converter and R to R ladder type D2A converter. In this lecture, we will start with the analog to digital converter, and we will discuss first type of A to D converter, that is the ramp technique or ramp type of A to D converter. This is the lecture plan 34 of the subject EMI. So let's start with the topic. What is ADC or analog to digital converter? An electronic circuit which transforms a signal from analog to digital form is called as ADC. The analog form is a continuous form and the digital form is discrete form. The basic principle of operation of ADC is to use the comparator principle to determine whether or not to turn on a particular bit of the binary number output. यानी कि हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को या दो वोल्टेज को कंपेयर करेंगे और उससे हमें ये डिसाइड करना रहेगा कि हमें उस पर्टिकुलर बिट को ज़ीरो करना है कि वन करना है. सो इन दिस particular topic we will convert analog signal into digital signal. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स आर रियल वर्ड सिग्नल्स दैट कंटेन नॉइस एंड इट इज़ कंटिन्यूस इन टाइम. तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है दैट शोज द एनालॉग सिग्नल दैट इज़ कंटिन्यूस इन टाइम एंड वैल्यू, जिसमें कि हम कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ सिग्नल. और डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं? Digital signals are those signals that are discrete in time in value, and it can take only two values. It can contain two values, 0 and 1. So this is the diagram for digital signal. In the ADC, we have to convert analog signal into digital signal. What is the need of ADC or why ADC is important? There are many points here. First is all microcontrollers store information using digital logic. जितने भी माइक्रो कंट्रोलर चिप्स होते हैं सभी में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होगी? इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल लॉजिक. वी कैन कंप्रेस इंफॉर्मेशन टू डिजिटल फॉर्म फॉर एफिशिएंट स्टोरेज. मीडियम फॉर स्टोरिंग डिजिटल डाटा इज मोर रोबस्ट. डिजिटल डेटा ट्रांसफर इज मोर एफिशिएंट. Digital data is easily reproducible, and this provides a link between the real world signal and the data storage. Real world signal means this is analog signal, and data storage means this is in the form of digital signal. ADC are used virtually everywhere where an analog signal has to be processed, stored or transported in the digital form. Some examples of ADC uses are digital voltmeter, thermocouple and digital oscilloscope. There are many more examples also. These are the some of them. Microcontroller commonly use 8-bit, 10-bit, 12-bit or 16-bit ADC. So this is the need of A to D converters. Now how ADC works? ADC means analog to digital conversion. So this is a two-step process. First is sampling and holding and the second is quantizing and encoding. तो जैसा कि डायग्राम से हम समझ सकते हैं, the input signal is in the form of analog signal. This is the input analog signal जिसकी वैल्यू क्या है? U1t. T1 यानी कि ये टाइम वेरिंग सिग्नल है, टाइम के साथ वो वेरी करेगा एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ सिग्नल. इस सिग्नल को हमने कहाँ दिया है इनपुट में? इन द सैम्पल एंड होल्ड सर्किट. सैम्पल एंड होल्ड सर्किट क्या करेगा? इसका सैम्पल्स करेगा और उस पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक कि नेक्स्ट टाइम नहीं आ जाता. तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? दिस इज़ द आउटपुट ऑफ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल्स दिए हैं और हर सैम्पल की वैल्यू कब तक रहेगी? जब तक कि नेक्स्ट सैम्पलिंग नहीं होगी. तो इसका काम क्या है? टू होल्ड द वैल्यू ऑफ प्रीवियस सैम्पल अप टू द नेक्स्ट सैम्पल इज टेकन. अब इसके बाद जो आउटपुट रहेगा सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का वो कहाँ जा रहा है? क्वांटाइजिंग एंड एनकोडिंग. तो क्वांटाइजिंग का काम क्या होगा? यहाँ पे एक वैल्यू अलॉट करना और एनकोडिंग का काम रहेगा उसको 0-1 के फॉर्म में इनकोड करना.
सो द आउटपुट वी ऑब्टेन हियर विल बी द डिजिटल सिग्नल, जिसकी की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें कितनी बिट्स हो सकती है, इट कैन बी एनी डिपेंडिंग अपॉन द वी आर यूजिंग हियर फॉर क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग. सो दिस इज़ द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. तो इस तरीके से हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, सैम्पलिंग एंड होल्डिंग एंड देन क्वांटाइजिंग एंड इनकोडिंग. तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अभी. सैम्पलिंग एंड होल्डिंग. The behavior of sample and hold is analogous to that of camera. Its main function is to capture picture of the analog signal and hold its value until the ADC can process the information. सैम्पल एंड होल्ड का काम करेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर उसके सैम्पल्स लेगा और उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक कि अगला सैम्पल नहीं आ जाता. होल्डिंग सिग्नल बेनिफिट्स द एक्यूरेसी ऑफ A to D कन्वर्जन. अगर होल्डिंग प्रोसेस नहीं होगा तो वो वैल्यू जो है वो पूरे समय होल्ड नहीं रख पाएंगे और उस वैल्यू को हम लॉस्ट कर सकते हैं. तो सो देयर विल बी एन एरर. मिनिमम सैम्पलिंग रेट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइएस्ट डेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनालॉग सिग्नल. इसको नाइक्विस्ट थ्योरम भी बोला जाता है. इसका क्या मतलब होता है, द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द हाइएस्ट डेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनालॉग सिग्नल, यानी कि या तो उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो. सो अगर हमें आउटपुट पे इजीली उसको रिकवर करना है बाय सैम्पल्स, सो दिस मस्ट बी अप्लाइड हियर. इसको फुलफिल करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं इन वेव फॉर्म से. सैम्पलिंग एंड होल्डिंग. इट इज़ अ कंटिन्यूअस सिग्नल जो कि एनालॉग सिग्नल है. नाउ वी आर डूइंग सैम्पलिंग हियर विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग पल्स. सैम्पलिंग पल्स कैसे दी जाएगी, at different instants of time like t1 then t2 then t3 then t4 like we are given the sampling pulse. तो जब भी sampling pulse दी जाएगी at the particular time the analog signal or the input signal will be sampled. तो जैसे कि t1 पे जो उसकी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, जो t2 पे वैल्यू होगी वो हमें इस ड्यूरेशन में इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी. So at every sampling pulse we will sample the input signal and according to the waveform of the input the sample will be obtained. जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी सो इट इज़ द शेप, और यहाँ पर जो शेप होगा ये रहेगा, फिर ये जो शेप रहेगा ये मिलेगा हमें. सो दिस इज़ द numbers of samples we are obtained here. So these are the number of samples according to the time of sampling pulses occurrence. तो ये हो गया सैम्पल सिग्नल. अब उसके बाद सैम्पलिंग तो हो चुकी है, लेकिन उस वैल्यू को हमें होल्ड करके भी रखना है जब तक कि नेक्स्ट सैम्पलिंग टाइम नहीं आता. तो सैम्पल और होल्ड का काम क्या रहेगा, सैम्पलिंग के साथ साथ इस वैल्यू पे जहाँ पे वो आया है लास्ट पॉइंट, उस वैल्यू को हमें होल्ड करके रखना है जब तक कि नेक्स्ट सैम्पल नहीं आ जाएगा. तो इस तरीके से ये होल्डिंग रहेगा जब तक कि नेक्स्ट पॉइंट नहीं आएगा. जो भी इसकी वैल्यू होगी वो होल्ड करके रहेगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो होल्ड करके रहेगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो होल्ड करके रहेगी. तो सैम्पल एंड होल्ड सिग्नल विल प्रोवाइड द सैम्पल्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम. सैम्पलिंग पल्स से वो सैम्पल होगा जब भी वहाँ पे क्लॉक दी जाएगी, जब भी वहाँ पे टाइम मिलेगा पल्स का, जब भी वो पल्स ऑकरेंस होगा, एट दैट टाइम द सैम्पल्स विल बी टेकन एंड द होल्ड सिग्नल विल बी होल्ड द वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो ये हो गया सैम्पलिंग एंड होल्डिंग. इससे हमने क्या किया, सैम्पलिंग की है और एनालॉग सिग्नल को हमने एक तरीके से यहाँ पे ब्रेकअप कर दिया इन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स और इन द नंबर ऑफ सैम्पल्स. Now next procedure is quantizing and encoding. Quantizing, that means approximates a continuous range of values and replace it with a binary number. क्वांटाइजेशन में हम क्या करेंगे, हम जो भी कंटिन्यूस रेंज थी हमारे पास उसको हम अप्रॉक्सीमेशन में लेंगे. सपोज अगर हमें वैल्यू मिल रही है 1.75, वी विल टेक इट एज अ 2. इफ इट इज़ 1.2 वी कैन टेक इट एज 1. सो टू अप्रॉक्सीमेट अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू, और उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हमें उसके बाइनरी नंबर से रिप्लेस करना है. इट इज़ कॉल्ड एज एनकोडिंग. तो जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो भी हमें वैल्यू मिली थी, सपोज अगर हमें वैल्यू मिल रही है लाइक दिस इज़ द पॉइंट, इट इज़ वेरी नियर टू वैल्यू
द वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। जो भी पॉइंट हम सैम्पल से हमें मिलेंगे उन वैल्यूज़ को हमें उसके नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको हमें उसके बाइनरी नंबर से रिप्लेस करना है। सपोज फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट वी आर टेकिंग 3.75, जो वैल्यू सैंपल के लिए हमने कहाँ पे ली है, एट द 3.75 वोल्ट, यानी जो सैंपल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, 3.75 पर। तो 3.75 को हम कैसे अप्रॉक्स कर सकते हैं, 4 से, और 4 का बाइनरी 3 बिट में क्या हो जाएगा, 100। तो अगर हम 3 बिट ADC बना रहे हैं तो 3 बिट में इसको क्या लिखेंगे हम, 100। सो दिस इज द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ऑफ द वोल्टेज 3.75। So the error is introduced between the input voltage and output binary representation, क्योंकि यहाँ पे हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इट विल बी अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पर हम जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो हमने उसके नियरेस्ट वैल्यू से उसको अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है और उसको फिर उसके बाइनरी से इनकोड किया हुआ है। एरर डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द ADC, जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतनी एरर कम रहेगी। नाउ व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब एज V ऑफ वोल्टेज ऑफ इनपुट रेंज, जितना भी रेंज होगा इनपुट वोल्टेज का, डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन द आउटपुट। हम कितने बिट्स में आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 3 बिट ADC होगा तो उसमें जो आउटपुट रहेगा वो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में रहेगा, 4 बिट ADC होगा तो उसमें 4 बिट के फॉर्म में रहेगा। सो n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द ADC आउटपुट। तो सपोज इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम अगर हमें मान ले द इनपुट वोल्टेज रेंज इज 7 वोल्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे रेंज कहाँ तक जा रही है हमारी, 7 तक जा रही है। एंड वी आर टेकिंग हियर 3 बिट, यहाँ पे देखो अब 0 0 0 0 0 1 0 1 0। सो द आउटपुट इज द 3 बिट वैल्यू, यानी कि हम हर वोल्टेज को 3 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो n इज 3, तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रेजोल्यूशन कितना आ गया, दिस इज 1 वोल्ट। सो द मैक्सिमम चेंज ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ 1 बिट चेंज इन द आउटपुट इज़ 1 वोल्ट, यानी कि जब आप 1 वोल्ट का चेंज वहाँ पे होगा तब वहाँ पर 1 बिट का चेंज आएगा। सो दिस इज द रेजोल्यूशन। एज वी कैन से द रेजोल्यूशन इज द डिग्री ऑफ, उसका कितना एक्यूरेसी वहाँ पे होगी वो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने इनपुट 0 0 है तो उसको हमने किस में डिकोड किया है, 0 0 0 में। व्हेन द इनपुट रीचेस 0.5 तो उसको हम सैम्पल यहाँ पे लिया है तो इसको किससे डिकोड किया है, 0 0 1 से। देन 1.5 को डिकोड किया है 1 से। देन 2.0 इज डिकोडेड एज, यहाँ पर यानी कि जब भी 1 वोल्ट का चेंज होगा तब यहाँ पर 1 बिट का चेंज होगा। सो इट रिक्वायर्स 1 वोल्ट चेंज टू प्रोड्यूस अ 1 बिट चेंज इन द आउटपुट। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन कितना हो गया, 1 वोल्ट, और एरर के चांसेस क्या होंगे यहाँ पे, प्लस माइनस रेजोल्यूशन बाय 2। सो इन दिस केस प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। सो दिस इज द रेजोल्यूशन। इसको हम एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे क्या होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजिंग, इन द केस ऑफ क्वांटाइजिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स एट द आउटपुट ऑफ कन्वर्टर इज, कितनी स्टेट्स हो सकती है वहाँ पर, इट इज़ इक्वल टू द 2 to the power n। तो एक 3 बिट AD कन्वर्टर के लिए कितने स्टेट्स होंगी वहाँ पर, 8 स्टेट्स होंगी, 2 to the power 3। और Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू द, यानी कि एनालॉग क्वांटाइजेशन साइज कितना लेंगे हम, स्टेप साइज कितना लेंगे हम यहाँ पर, Vmax माइनस Vmin अपॉन n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनालॉग इनपुट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स। तो अगर हम एग्जांपल के लिए ले लें कि हमें 0 से लेकर 10 वोल्ट के एनालॉग इनपुट को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 10 वोल्ट, मिनिमम वैल्यू हो गया 0 वोल्ट, और n कितना हो गया 8, क्योंकि हम यहाँ पे 3 बिट को ले रहे हैं। तो Q का कितनी वैल्यू आई, 1.25 वोल्ट। सो द एनालॉग क्वांटाइजेशन साइज इज 1.25 वोल्ट, यानी कि जो इसका स्टेप साइज आया है वो कितना है, 1.25 वोल्ट। सो we have to separate them into a set of discrete states with 1.25 volt increments। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगी, हमें 0 से लेकर 10 तक को करना है। सो वी डिवाइड
होल रेंज इनटू 1.25 1.25 इन दिस टाइप इंक्रीमेंट्स देना है हमको हर बार। तो यहाँ पे 7 0 से लेकर 7 एंड टोटल 8 स्टेट्स मिलेंगी विद द स्टेप साइज ऑफ 1.25। और उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है 0.00 से 1.25 तक को हमने 0 दिया है, फिर 1.25 से 2.50 को 1 दिया है। तो अब ये आउटपुट स्टेट्स हमें मिल चुकी है, दिस आर द आउटपुट स्टेट्स। और अब हर आउटपुट स्टेट को हम उसके पर्टिकुलर बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। सो वी असाइन द डिजिटल वैल्यूज़ टू ईच स्टेट फॉर द कंप्यूटर टू रीड। हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो जो हमने स्टेट डिफाइन की है उस पर्टिकुलर रेंज के लिए उसको हम उसके आउटपुट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सो इस तरीके से हम क्वांटाइजेशन करेंगे और इनकोडिंग करेंगे। सो इट वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडीसी, किस तरीके से एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन किया जाता है, सैम्पलिंग, होल्डिंग, क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग। नाउ टाइप्स ऑफ ए टू डी कन्वर्टर्स। There are many types of A to D converters, but in your syllabus there are 3 types of A to D converter. First is ramp type or counter type A to D converter, dual slope or integrated type A to D converter, and successive approximation type A to D converter. We will discuss ramp or counter type A to D converter in this lecture. Ramp type ADC or counter type ADC. It is the simplest type of analog to digital converter. इसमें क्या क्या लगा हुआ है? It is constructed using a binary counter, a DAC यानी कि D2A converter and a comparator. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ADC का मेन कंसेप्ट क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, द वर्किंग ऑफ कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या काम करता है? दो वैल्यूज को कंपेयर करता है एंड अकॉर्डिंग टू द इनपुट आउटपुट हाई या लो मिलता है हमें। तो अब यहाँ पे आप देखो, आप कंपैरेटर में कौन कौन से इनपुट्स दिए हुए हैं। देर आर 2 इनपुट्स इन द कंपैरेटर। फर्स्ट इज द एनालॉग इनपुट जिसको कि हमें कन्वर्ट करना है, और दूसरा कहाँ से आ रहा है? ये DAC से आ रहा है। सो दिस विल कंपेयर बोथ द इनपुट VA एंड VD। VA इज द एनालॉग इनपुट दैट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिजिटल एंड VD इज द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द DAC। सो बाइनरी काउंटर बना हुआ है यहाँ पे। बाइनरी काउंटर क्या करेगा? इट विल काउंट स्टेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू जब तक कि पूरा कन्वर्जन नहीं होगा, और यहाँ से हमें डिजिटल आउटपुट मिलेगा। क्लॉक दे रहे हैं हम एंड गेट में, और उसमें एंड गेट में दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। तो जब भी काउंटर को क्लॉक मिलेगी तब एक काउंट करेगा, और अगर क्लॉक नहीं मिलेगी तो ये उस समय रीसेट हो जाएगा। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा? इनिशियली इसको क्लॉक को हमने देना स्टार्ट किया। इनिशियली काउंटर के अंदर क्या वैल्यू रहेगी? इनिशियली द काउंटर विल इन द रीसेट कंडीशन। काउंटर के अंदर क्या वैल्यू रहेगी? सपोज वी आर यूजिंग हियर 3 बिट ADC, तो काउंटर के अंदर 3 फ्लिप फ्लॉप लगे रहेंगे, और क्या वैल्यू मिलेगी हमें? रीसेट कंडीशन में 0 0 0। तो उस कंडीशन में बाइनरी काउंटर की वैल्यू कहाँ जा रही है? D2A कन्वर्टर में। अब एक्चुअली हमको अभी DAC की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरेटर में 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, तो दोनों वैल्यूज सेम नेचर की होना चाहिए। तो अगर इनपुट एनालॉग यहाँ से हम दे रहे हैं, तो जो सेकंड इनपुट होगा वो भी एनालॉग नेचर का ही होना चाहिए। तो काउंटर से जो भी स्टेट मिलेगी DAC क्या करेगा? उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर DAC से क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा, और एनालॉग इनपुट कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ ग्रेटर देन 0, सपोज टू बी कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो इस केस में जो VA है इट इज़ ग्रेटर देन VD। इनिशियली व्हेन द काउंटर इज इन रीसेट स्टेट द DAC विल प्रोवाइड 0 आउटपुट, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। और अगर हम VA मान ले कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इन दिस केस VA इज़ ग्रेटर देन VD। अब जैसे ही VA इज़ ग्रेटर देन VD होगा, VA कहाँ कनेक्ट है? इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से, और VD किससे कनेक्टेड है? इन्वर्टिंग इनपुट से। तो अगर VA हाई हुआ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। पॉजिटिव वोल्टेज मीन्स वी कैन से 1। तो जैसे ही यहाँ पे 1 हुआ तो एंड गेट विल बी इनेबल। क्लॉक यहाँ पे हम दे रहे हैं, एंड गेट इनेबल हो जाएगा, और एंड गेट इनेबल होने से जो क्लॉक होगी वो कहाँ पास होगी? टू द बाइनरी काउंटर। सो द बाइनरी काउंटर विल गेट द क्लॉक एंड विल स्टार्ट द काउंटिंग।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी, नेक्स्ट स्टेज को ये फिर से DAC उसको कन्वर्ट करेगा। सपोज 00 के बाद ये आया 001, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा DAC एनालॉग फॉर्म में, फिर उसको कंपेयर करेगा। अभी भी हो सकता है VA इज़ ग्रेटर देन VD हो। सो अगेन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज़ ग्रेटर देन द इन्वर्टिंग इनपुट, हमें फिर से 1 मिलेगा। एंड गेट विल बी इनेबल, clock will be allowed to pass through the AND gate to the binary counter and the counter will start to again counting। तो ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा? जब तक कि VA की जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन VD और इट इज़ इक्वल टू द VD। तो ये कंडीशन जब आएगी, जबकि हम इसको बार बार काउंटिंग करवा रहे हैं, काउंटर्स की स्टेट बढ़ती जा रही है, काउंटिंग उसमें परफॉर्म हो रही है, तो एक पॉइंट आके we can say that VA is equal to or greater than VD। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ये इक्वल के बाद ग्रेटर वाली कंडीशन आएगी, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, ये नेगेटिव इनपुट पे कनेक्ट है और ये पॉजिटिव इनपुट पे कनेक्ट है। तो अगर VD की वैल्यू VA से बढ़ गई एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द कंपैरेटर आउटपुट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वी आर गेटिंग हियर 0 वोल्ट। अब जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, द एंड गेट विल बी डिसेबल्ड। एंड गेट एक तरीके से यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा एंड क्लॉक इज़ नॉट अलाउड टू पास टू द बाइनरी काउंटर। यानी कि अभी तक जो क्लॉक जा रही थी, बाइनरी काउंटर को क्लॉक नहीं मिलेगी और उस केस में बाइनरी काउंटर की काउंटिंग वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अब इस समय जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, सपोज इसने काउंटिंग की है, हमने अगर VA दिया है 10 वोल्ट, या हम मान लें VA की वैल्यू क्या है, सपोज VA इज़ 7 वोल्ट। अगर इसने काउंटिंग की है 7 वोल्ट तक, तो इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 111। सो दिस वैल्यू विल बी अपीयर्ड एट द डिजिटल आउटपुट LSB टू द MSB। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं हम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ADC। बहुत सिंपल है। इनिशियली काउंटर इज रीसेट टू द 0 वैल्यू। At this time DAC will provide 0 output and at this time VA is greater than VD. As the non-inverting input of the comparator is greater than the inverting input, the output will be high and the AND gate will be enabled and it will allow the clock to pass to the binary counter. The counter will advance the states. This procedure will continue until VA is less or equal than VD. When the value of VA is less than VD at this particular time, the inverting input of the comparator यानी कि माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी, VD is greater than VA, तो VD is greater than VA. In this case, inverting input of the comparator is greater than the non-inverting input. So the output of the comparator will be a negative value. तो इस केस में OR गेट में क्या, NAND गेट में क्या जाएगा, 0 जाएगा and the AND gate will be disabled and the clock is not allowed to pass to the binary counter. तो इस पोजीशन तक काउंटिंग जितनी हो चुकी है वो काउंटिंग स्टेट्स यहाँ पे स्टोर रहेगी। जैसे कि अगर हमें VA को हमने ले लिया 5 वोल्ट, तो 3 बिट अगर हम ADC बना रहे हैं तो 5 वोल्ट की वैल्यू क्या हो गई, 101। तो उस केस में 101 यहाँ पे स्टोर रहेगा। इट इज़ MSB एंड दिस इज़ MSB बिट एंड दिस इज़ LSB बिट। तो ये 101 हमें कहाँ मिलेगा, एट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल आउटपुट। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ रैम्प टाइप और काउंटर टाइप ADC। तो यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन किया है, एक बार इसको रीड कर सकते हैं हम। The n-bit binary counter is initially set to 0 by using reset command. Therefore, the digital output is 0 and the equivalent voltage VD is also 0 volt. When the reset command is removed, the clock pulses are allowed to go through AND gate and are counted by the binary counter. The D2A converter converts the digital output of counter to an analog voltage and applied as the inverting input to the comparator. The output of the comparator enables the AND gate to pass the clock. The number of clock pulses increases with time and the analog input voltage VD is a rising staircase waveform as shown in figure. अभी हम उसको देखेंगे उस डायग्राम को। The counting will continue until the DAC output VD equal and just rise more than the unknown analog input voltage VA.
then the comparator output becomes low and this disables the AND gate from passing the clock. Now the counting stops at the instant VA is less than VD, and at that instant the counter stops its progress and the conversion is said to be complete. और इस समय जो वैल्यू होगी काउंटर में वो क्या रहेगा, उसका कन्वर्टेड वैल्यू रहेगी, यानी कि हमने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया है. सो यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है, दिस इज़ अ रैम्प टाइप और स्टेयरकेस टाइप वेव फॉर्म. इसको हम स्टेयरकेस टाइप वेव फॉर्म बोलते हैं, जिसमें कि इस तरीके से वो वैल्यू इंक्रीज होती है इन एवरी काउंट. सो दिस इज कॉल्ड एज रैम्प टाइप और स्टेयरकेस टाइप एडीसी. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं वेव फॉर्म में, इनिशियली ये रीसेट था, जैसे इसको रीसेट को हमने इनएक्टिव कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक रीसेट को इनएक्टिव किया हुआ है, क्लॉक इज अलाउड टू पास और काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी. सबसे पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ. एंड देखो आप यहाँ पर एनालॉग वोल्टेज इज कांस्टेंट, जो कि हमें कन्वर्ट करना है. दिस इज द लाइन ऑफ एनालॉग वोल्टेज. तो यहाँ पे एक तरीके से रेसिंग हो रही है, यानी कि ये जो डीएसी होगा उसका जो वैल्यू निकलेगी वो हर बार वीए के साथ कंपेयर होगा. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक वीए इज़ ग्रेटर देन वीडी. अगर हम वीए को ले लेके 10 वोल्ट है तो वीडी की वैल्यू क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. लाइक जब तक कि ये वीए को क्रॉस नहीं करेगा तब तक काउंटिंग होती रहेगी. तो वीए इज़ अ फिक्स वैल्यू एंड वीडी इज़ अ variable according to the counter output. So 1 is VA is less than VD, then at 2 again VA is greater than VD, then at 3 again VA is greater than VD. और 8 पे क्या हो गया, जब हमने 8th क्लॉक पल्स दी उसमें क्या हो गया, VA is less than और इक्वल टू VD, ये कंडीशन आ गई. तो इस कंडीशन पे आके जो वैल्यू यहाँ पे थी, जो वैल्यू स्टोर थी उस समय इस क्लॉक पल्स में कौन सी वैल्यू स्टोर थी, यहाँ पर 8 को हम लेके चल रहे हैं. सपोज अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सो द वैल्यू स्टोर्ड इज़ 1000. 4 बिट अगर हम ले रहे हैं तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000. तो यहाँ पर आके वी और वी डी क्या रिलेशन हो गया, वी ए इज़ लेस देन और इक्वल टू वी डी. तो जैसे ही ये पॉइंट मिलेगा जहाँ पर कि दोनों वैल्यू सेम हो गई, एट दैट पर्टिकुलर टाइम काउंटर विल स्टॉप द काउंटिंग एंड द काउंटर विल कंटेन द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन. और उस समय जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू कहाँ पे मिलेगी हमें, उसके आउटपुट में. सो द डिजिटल आउटपुट विल बी ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ काउंटर. तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म मिलता है, दिस इज अ रैम्प टाइप वेव फॉर्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म. और उसके बाद एक काउंटर की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं अपने कन्वर्जन के लिए, एंड अगेन काउंटर विल रीसेट फॉर द फर्दर कन्वर्जन. फिर से इसको रीसेट कर दिया, रीसेट एक्टिव कर दिया, अगेन काउंटर इज रीसेट, उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं. सो इट इज़ द वर्किंग ऑफ रैम्प टाइप एडीसी. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ रैम्प टाइप एडीसी. फर्स्ट इज सिंपल कंस्ट्रक्शन, easy to design and less expensive. Speed can be adjusted by adjusting the clock frequency. जैसे कि हमने क्लॉक दिया हुआ है तो क्लॉक को सेट करके हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं. एंड इट इज़ फास्टर देन ड्यूअल स्लोप टाइप एटीसी. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रैम्प टाइप एडीसी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, उसके वर्किंग समझानी है, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, एंड वेव फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो आपको रैम्प टाइप वेव फॉर्म भी यहाँ पर ड्रॉ करना है. थैंक यू.